صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد، ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین هم مرکان الایمان وامناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء ان تقال الارض وبهم يمسك الله الارض ان تمید باهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت باهلها لا سیما بقیت اللہ روحی وارواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من انصاره وعوانه ولا تجعلنا من اعدائه۔ صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آج کا دن چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین قطب السالکین صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سید الساجدین زین العابدین قطب السالکین ذو الصفنات، وہ ہستی جو کہ ابن الخیرتین ہے، امام العارفین، امام الصابرین، امام الشاکرین ہے، ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ امام ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہ بعد کربلا 35 برس تک زندہ رہے۔ 95 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ 35 برس تک امام علیہ السلام زندہ رہے اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ جب امام علیہ السلام کو کسی درس کی اجازت نہیں ہے، اقامہ نماز جمعہ کی اجازت نہیں ہے۔ عبد الملک ابن مروان جو کہ وقت کا حاکم ہے، امام علیہ السلام پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام بھی طواف کعبہ میں مصروف ہیں اور عبد الملک ابن مروان بھی وہاں پر ہے۔ اس نے جب امام کو دیکھا تو امام ظاہر ہے امام دور دور طواف کر رہے ہیں، جب طواف سے فارغ ہوئے تو عبد الملک ابن مروان امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے مولا، آپ مجھ سے دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ میں نے تو آپ کے بابا کو قتل نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے بھی میرے بابا کو قتل کیا ہے وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے، اور اگر تم بھی ہمارے ساتھ کوئی بدی کرو گے تو تم بھی اس کے نتیجے کو دیکھ لو گے۔ اور پھر اس کے بعد عبد الملک کیا کہتا ہے کہ یا امام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک سادہ سی، ایک عام سی کنیز کو خریدا اور پھر اس کو آزاد کیا اور اس سے شادی کی ہے۔ آپ ہمیں بتاتے تو ہم بہترین دختران عرب سے آپ کی شادی کرتے۔ ہاں، کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر امام کے اوپر فخر و مباحات کر رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم آپ کی بہترین خاندان میں شادی کرواتے۔ آپ نے کیوں ایک عام سی سادہ سی ایک کنیز سے شادی کی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اسی وقت اپنی عبا کو اتارا اور زمین پر رکھا۔ عبد الملک ابن مروان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ امام کی وہ ساری کی ساری عبا جو ہے وہ زر و جواہر سے پر ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد
आखिर जब इतनी पाबंदी थी कि कोई भी शख्स जब इमाम अलैहिस्सलाम से मिलता था तो उससे पूछगछ करना शुरू हो जाते थे कि बताओ तुमने इमाम अलैहिस्सलाम से क्या बात की, क्या सवाल किया, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब कैसे दिया। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन 35 बरसों में इमाम अलैहिस्सलाम ने वो इमामत की जिम्मेदारियों को अदा कैसे किया, काम कैसे किया। वो ऐसा वक्त है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम, जैसा अभी बताया कि किसी दर्स की इजाज़त नहीं है, हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम से कोई सवाल करता है तो उससे सवाल किया जाता है कि तुमने इमाम अलैहिस्सलाम से क्या बात की है। ऐसे आलम में इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह अदा करते हैं कि जब भी किसी रिवायत को बयान करते हैं, जब भी किसी हदीस को बयान करते हैं तो फौरन क्या कहते हैं कि मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसा इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन, मेरे बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा इरशाद फरमाया। हाँ, जब भी कोई रिवायत की, ये नहीं कहते कि ये मैं कह रहा हूँ, फौरन किसका वो रिवायत बयान करते हैं कि ये मेरे जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ऐसा बयान किया है। हम सब जानते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, उन्हें क्या कहा जाता है कि सैयदुस साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन है, आपकी इबादत का क्या कहना। लेकिन जब कोई इमाम अलैहिस्सलाम को ये कहता है कि मौला आपकी इबादत का क्या कहना, आपकी इबादत कैसी है, तो फौरन इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि तुमने मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की इबादत को नहीं देखा। अगर तुम अली की इबादत को देख लेते तो कभी भी मेरे बारे में ऐसा न कहते। ये ऐसा ज़माना है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम को तफसीर कुरान की इजाज़त नहीं है, लेकिन रिवायत क्या कहती है कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत किया करते थे। इतनी बुलंद आवाज़ से कि अगर गली में से कोई गुजर रहा होता था तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनता था। इमाम अलैहिस्सलाम इतनी दिलकश आवाज़ में कुरान की आयात की तिलावत किया करते थे। और ऐसा वक्त कि जब तफसीर कुरान की इजाज़त नहीं है, कि मुआविया ने ख़ास तौर पर कहा हुआ था कि किसी को भी तफसीर कुरान करने की इजाज़त नहीं है। एक मरतबा इब्ने अब्बास ने कहा कि ए मुआविया, तुम लोगों को क्यों मना करते हो कि वो तफसीर कुरान को बयान न करें, हालांकि लोगों को चाहिए कि वो कुरान से आशना हो। तो मुआविया आगे से क्या कहता है कि देखो, मुझे तफसीर कुरान से कोई गरज नहीं है, लोग तफसीर कुरान करें, सुने, लेकिन तुम लोगों से ना सुने, तुम लोग बयान ना करो। फिर किससे सुने? कहा कि जो ख़ास तौर पर हमारे अफराद हैं, हमारे उलमा हैं, लोग उनके पास आएं और तफसीर कुरान को सुने। ख़ास तौर पर समरत इब्न जंदब के बारे में बयान किया जाता है कि हाकिम शाम ने ख़ास तौर पर इस शख्स को रखा हुआ था कि ये कुरान की तफसीर को बयान करता था। वो तमाम आयात जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, ये इनको तब्दील करके हाकिम शाम और दूसरे अफराद की शान में बयान करता था। ऐसे आलम में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम लोगों के सामने तफसीर कुरान को किस तरह बयान करते हैं कि एक शख्स और उसने आकर इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि ये जो आयत है कि या हसरता मा फर्रत फी जंबिल्लाह, के कुरान जो क़यामत का एक नाम है वो क्या है? यौम हसरा। कुरान के बहुत सारे नाम हैं क़यामत में जो बयान हुए हैं, सॉरी माजरत, क़यामत के बहुत सारे नाम हैं जो कुरान के अंदर बयान हुए हैं। उनमें से एक नाम क्या है? वो यौमुल हसरा है कि इंसान उस दिन क्या करेगा? हसरत करेगा कि क्यों मैंने नेक आमाल को अंजाम नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर इंसान हसरत करेगा, रिग्रेट करेगा कि मैंने क्यों नेक आमाल को अंजाम नहीं दिया। ये जो कुरान की आयत है कि या हसरता मा फर्रत फी जंबिल्लाह, एक शख्स आया और उसने आकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि ये जो कुरान की आयत कहती है कि या हसरता, हाँ, मा फर्रत फी जंबिल्लाह, कि मैंने क्यों जंबिल्लाह के हक में कोताही की है। इस जंबिल्लाह से क्या मुराद है? इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान करना शुरू किया और कहा कि देखो, क़यामत का एक नाम यौम हसरत है, उसे यौम हसरा कहा गया कि जिस दिन इंसान हसरत करेगा। किस बारे में हसरत करेगा? बहुत सारी चीज़ों के बारे में हसरत करेगा। एक चीज़ क्या है कि क्यों उसने जंबिल्लाह के हक में कोताही की है। ये जंबिल्लाह कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया, वो अली और औलादे अली अलैहिस्सलाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। Muhammadin wa ali Muhammad.
پھر ایسا وقت کہ جب محمد و آل محمد پر درود کو ممنوع کر دیا گیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو تبلیغ کی ہے وہ کس طرح کی ہے؟ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے کی ہے, صحیفہ سجادیہ کی صورت میں کی ہے. ہاں, امام علیہ السلام کا جو رسالہ حقوق ہے, امام علیہ السلام نے اس رسالہ حقوق کو بیان کیا, تمام چیزوں کے حقوق کو بیان کیا. آج بھی جو ہیومن رائٹس کو بیان کیا جاتا ہے, آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ ہر چیز کے حق کو بیان کیا, لیکن جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے ہر چیز کے حق کو بیان کیا, اس طرح آج تک کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. امام علیہ السلام نے بیان کیا تمہاری آنکھ کا حق کیا ہے, تمہارے کان کا حق کیا ہے, تمہاری زبان کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, فرزند کا حق کیا ہے, شاگرد کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے. کیا ایسے کوئی حقوق کو بیان کر سکتا ہے کہ جیسے کہ امام علیہ السلام نے بیان کیا؟ تو ایسے عالم میں کہ جب درود پر پابندی لگائی گئی تھی, توجہ, درود پر پابندی لگائی گئی, صلوات پر پابندی لگائی گئی, ایسے عالم میں امام علیہ السلام نے ایک دعا کو پڑھا. آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں, امام علیہ السلام کی دعا ہے, امام ایک دعا کا جملہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درود کو پڑھتے ہیں. کئی مرتبہ اس دعا کے اندر کیا آیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ کیسی عرفانی کتاب ہے, امام علیہ السلام کی جو دعاؤں کی کتاب ہے کہ جسے زبور آل محمد کہا گیا, انجیل اہل بیت کہا گیا. ایسی کتاب کہ ہنری کاربن, ایک جو فرینچ مفکر ہے, اس کی علامہ طباطبائی سے ملاقات ہوئی تھی اور جو ان دونوں کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی اسے بھی ایک کتاب کی صورت میں چاپ کیا گیا. بہرحال اتنا بڑا مفکر ہے لیکن ظاہر ہے کرسچن ہے, اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم اتنے بڑے عہدے پر کیسے فائز ہوئے, تم نے عرفان کو کیسے پایا, تم الہیات تک کیسے پہنچے, ہاں, اس مقام تک کیسے پہنچے کہ تم نے خدا کو پا لیا, آخر کون سی ایسی چیز سبب بنی کہ تم خدا تک پہنچ گئے؟ تو وہ ہنری کیا کہتا ہے؟ کہا کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو صحیفہ سجادیہ کے اندر پڑھا اور میں اس منزل تک پہنچ گیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بہرحال امام علیہ السلام کا وہ مشہور شعر امام علی علیہ السلام کا بارہا آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اور آپ سب اس سے آشنا ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن, اے پروردگار میری عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, ہاں, اے پروردگار میرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. امام علیہ السلام دو چیزوں کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ایک تو کیا کہتے ہیں؟ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن, اے پروردگار میری عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. یہ عزت کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں, امام علیہ السلام کا یہ جو شعر ہے نا, شعبی اہل سنت کا عالم ہے اور اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے یہ جو شعر کہا ہے نا, یہ ایسا شعر ہے کہ فقانا عیون البلاغہ و ایتمنا جواہر الحکمہ. امام علیہ السلام نے یہ جو شعر کہا ہے, یہ شعر ایسا ہے کہ گویا امام علیہ السلام نے بلاغت کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. و ایتمنا جواہر الحکمہ, اور حکمت کو, علم کو, دانائی کو یتیم کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ شعبی یہ کہتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام نے پوری زندگی کوئی کلام نہ کیا ہوتا, صرف ایک یہ بات کہی ہوتی کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن, صرف امام علیہ السلام نے پوری زندگی صرف یہ ایک بات کہی ہوتی تو امام علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہی بات کافی تھا. کیا کہتا ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام نے پوری زندگی
कुछ भी कलाम ना किया होता, खामोश रहे होते, तो तब भी इमाम की अजमत के लिए यही बात काफी थी। हाँ, इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि इलाही कफा बिइज़्ज़न, मेरी इज्जत के लिए यही बात काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। ये इज्जत कहा किसे जाता है, हम किस चीज को इज्जत समझते हैं, और आइमा अलैहिमुस्सलाम ने इज्जत किस चीज को बयान किया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिन है ना, इमाम अलैहिस्सलाम की जो सहीफा सज्जादिया, वैसे तो इतनी तवील दुआएं हैं इमाम अलैहिस्सलाम की, सिर्फ एक जुमला आज आपके सामने कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि इलाही आइज़्ज़नी वला तब्तलियनी बिल किबर। इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ए परवरदिगार मुझे इज्जत अता करना, तवज्जो, ए परवरदिगार मुझे इज्जत अता करना और मुझे तकब्बुर में मुब्तला न करना। इमाम अलैहिस्सलाम परवरदिगार से इज्जत को तलब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं, ए परवरदिगार मुझे तकब्बुर में मुब्तला न करना। गोया इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह में इज्जत और तकब्बुर दो अलग अलग चीजें हैं। जहां पर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बाइज्जत करना, वहां पर इमाम क्या कह रहे हैं, ए परवरदिगार मुझे किब्र से दूर रखना। इज्जत किसे कहते हैं और तकब्बुर किसे कहते हैं? इज्जत क्या चीज है? आइम्मा ने बयान किया कि इज्जत वाकईयत है, हकीकत है, लेकिन जो तकब्बुर है वो एक शराब की तरह है। हाँ, इल्यूजन है कि शराब क्या चीज होती है, दूर से पानी नजर आ रहा है, लेकिन जब आप करीब जाएंगे तो वहां पर पानी नहीं होगा। आइम्मा क्या कहते हैं कि इज्जत हकीकत है, हाँ, इज्जत वाकईयत है, लेकिन जो तकब्बुर है वो एक शराब की तरह है। क्या फर्क है इज्जत में और तकब्बुर में? कहा कि इज्जत परवरदिगार अता करता है, लेकिन तकब्बुर इंसान की अपनी सिफत है। हाँ, इंसान के अंदर जब तकब्बुर आता है, किन चीजों की वजह से आता है? किन चीजों की वजह से आता है? सब जानते हैं, माल है, औलाद है, खानदान है, नसब है, हाँ, दौलत है, शोहरत है, ओहदा है, मनसब है। इंसान के अंदर क्या आ जाएगा? तकब्बुर आ जाएगा। तकब्बुर इंसान की अपनी सिफत है, उसकी अपनी एक नफसानी सिफत है, लेकिन जो इज्जत है वो परवरदिगार अता करता है। हाँ, वलिल्लाहिल इज्जतु जमिया। हाँ, जो कोई चाहता है कि वो बाइज्जत बने, तवज्जो, मन युरीदुल इज्जा वलिल्लाहिल इज्जतु जमिया, जो कोई चाहता है कि वो बाइज्जत हो, तो सारी की सारी इज्जत तो किसके पास है? वो परवरदिगार के पास है। वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा, परवरदिगार जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। किसी के करने से, किसी के कहने से, किसी की गीबत से, किसी के कीने से, किसी के हसद से कोई इंसान बेइज्जत नहीं हो सकता। आइम्मा की रिवायात अहादीस नौजुबिल्लाह झूठी नहीं हो सकती। हाँ, खुदा क्या कहता है कि जो कोई इज्जतदार होना चाहता है, तवज्जो, जो कोई इज्जतदार होना चाहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु जमिया, सारी की सारी इज्जत तो परवरदिगार के पास है। यानी जो कोई भी जितना भी परवरदिगार से करीब हो जाएगा, उतना ही वो बाइज्जत होता चला जाएगा। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक गली में आए, तो जाहिर है वक्त के इमाम हैं, लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम का एहतराम करना शुरू कर दिया, हाथ चूमना शुरू कर दिया, सलाम कर रहे हैं, अकीदत का इजहार कर रहे हैं। एक बूढ़ा यहूदी आगे बढ़ा और बढ़कर क्या कहता है कि इन्ना फीका किब्रन, कि आपके अंदर इस वक्त मैं क्या देख रहा हूं? मैं किब्र को देख रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरे अंदर किब्र नहीं है, इन्ना फिया इज्जन, मेरे अंदर इज्जत है। यानी ये जो मकाम है, ये जो ओहदा है, ये जो लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत है, ये किस वजह से है? कि परवरदिगार आलम ने हमें अजीज बनाया है। परवरदिगार ने हमें अजीज बनाया। हम जब दुआए तवस्सुल को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? एक जुमला, हर इमाम का नाम लेते हैं और उसके बाद एक जुमला अदा करते हैं, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, ऐ वो हस्ती जो कि परवरदिगार के नजदीक इज्जतदार है, वजी है, इश्फा लना इंदल्लाह, आप परवरदिगार के नजदीक हमारी शिफाअत कर दीजिए। ये हस्तियां क्या हैं?
परवरदिगार के नज़दीक इज्जतदार हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब यजीद के दरबार में गई थी तो वहाँ पे जो बेहतरीन खुतबा दिया तो साथ बीबी का एक जुमला था कि ऐ यजीद किद कैदक, जो कुछ करना है कर ले, जो कुछ भी करना है कर ले, जो तेरे बस में था, तवज्जो, जो तेरे बस में था तूने किया। हमारे ऊपर पानी को बंद कर दिया, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया, हमारी चादरों को लूट लिया, हाँ, हमारे खैमों को जला दिया, हमें असीर कर लिया, हमें कूफा के बाजारों में ले आए, हमें शाम के दरबार तक ले आए, लेकिन याद रखना जो करना है कर ले। हम वो हैं जो कि परवरदिगार के नजदीक इज्जत रखते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना दरबार यजीद में कि परवरदिगार ने हमें कुछ चीजें अता की हैं। कौन सी चीजें, अब उन चीजों को अगर बयान करूंगी तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों में से एक चीज को बयान किया था कि परवरदिगार ने लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को डाला है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले परवरदिगार ने लोगों के दिलों में हमारी इज्जत को डाला है। हम परवरदिगार के नजदीक अजीज हैं, हमारे पास परवरदिगार की इज्जत मौजूद है। रिवायत क्या कहती है कि एक मर्तबा हारून रशीद के दिल में शदीद दर्द हुआ। हाँ, उस वक्त का जो हकीम था बख्तिशु उसका नाम बताया जाता है, वो आया और उसने अपना इलाज जो कुछ करना था वो किया, लेकिन किसी तरह भी हारून रशीद का वो जो दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाओ कि जो परवरदिगार के नजदीक इज्जतदार हो, वो आए और तुम्हारे हक में दुआ करे तो शायद तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो जाए। जाहिर है उस जमाने में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन ऐसी हस्ती हो सकती है। कौन सी ऐसी हस्ती हो सकती है जो इमाम से ज्यादा परवरदिगार के नजदीक अजीज हो, जो इज्जतदार हो। इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद से खुरासान बुलाया गया। जब इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, बताया कि हारून रशीद को ये तकलीफ है, इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठाया दुआ के लिए और क्या कहा कि ए परवरदिगार, जो इज्जत हम तेरे नजदीक रखते हैं, यानी इमाम अलैहिस्सलाम उस वक्त हारून रशीद को और उस ज़माने के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर परवरदिगार के नज़दीक कोई इज्जतदार है, अजीज है, तो वो हम हैं। ए परवरदिगार, वो इज्जत जो हम तेरे नज़दीक रखते हैं, उस इज्जत का वास्ता कि तू इस हारून रशीद की तकलीफ को दूर कर दे। और रिवायात क्या कहती है कि हारून रशीद की वो तकलीफ दूर भी हो गई। बहरहाल कैसे मुमकिन है, कैसे, कौन से ऐसे तरीके हैं, तवज्जो, कौन से ऐसे तरीके हैं कि इंसान जो है वो बाइज्जत हो जाए। उस इज्जत को हासिल करने के क्या तरीके हैं। वैसे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया कि इलाही आइज़्ज़नी वला तब्तलियनी बिल किबर, कि ऐ परवरदिगार मुझे इज्जत अता करना, मुझे किब्र में मुब्तला न करना। गोया इंसान के अंदर अगर खुजू मौजूद है, उसके अंदर इनकिसारी मौजूद है, वो तकब्बुर से दूर है, तो यूं समझ लीजिए कि परवरदिगार उसे उतना ही बाइज्जत बनाता चला जाता है। लेकिन आइमा अलैहिमुस्सलाम की रिवायात के अंदर क्या मिलता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को बाइज्जत बनाती हैं। इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वहफज़ लिसानका तुअज़, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, इसकी हिफाजत करो, तुअज़, तुम क्या हो जाएगा, परवरदिगार तुम्हें इज्जत अता करेगा। हाँ, ये जो जुबान है ये क्या चीज है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मिफ्ताहु कुल्ल खैर व शर अल लिसान, कि हर नेकी, हर बुराई की जो चाबी है वो ये जुबान है। अगर तुम चाहते हो कि परवरदिगार के नजदीक इज्जतदार हो जाओ तो क्या करो, अपनी इस जुबान को कंट्रोल में रखो, लह व लअब से परहेज करो। हाँ, कम हर्फ बनो, हाँ, कम हर्फ बनो। और एक दो मरतबा पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि कोई ये ना समझे कि इसका ये मतलब है कि बस इंसान खामोश रहे और एक गोशे में बैठा रहे तो वो क्या होगा, वो इज्जतदार हो जाएगा। नहीं, आइमा ने यहाँ पर करेक्शन की है कि कम हर्फ हो और खूब हर्फ हो, बेहतरीन बातें करने वाले हो, वाज़ो नसीहत करने वाले हो। तुम्हारी जुबान से ऐसी कोई चीज न निकले जो किसी दूसरे के दिल को दुखा दे।
خطبہ ہمام کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں کہ ہمام آیا تھا, اس نے امام علیہ السلام سے متقین کی صفات, مومنوں کی صفات کو بیان کرنا چاہا کہ مولا مومنوں کی صفات کو بیان کیجئے, متقی کون لوگ ہوتے ہیں. امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ پہلے تو یہی کہا کہ مومن اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ حرام سے دور ہوتا ہے, جو حلال خدا کو انجام دیتا ہے, وہی متقی ہے, وہی پرہیزگار ہے. لیکن جب ہمام اصرار کرتا ہے کہ نہیں مولا مجھے ڈیٹیل سے بتائیے کہ مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہیں, امام علیہ السلام نے 110 صفات بتائیں. جو پہلی صفت مومن کی بتائی ہے وہ صفت کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, جس کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے. 300 گناہ علماء نے بیان کیے جو کہ صرف اس زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو امام کیا کہتے ہیں, کیسے کوئی چاہتا ہے کہ وہ باعزت بن جائے؟ دولت سے نہیں بنے گا, شہرت سے نہیں بنے گا, ظاہری اس سٹیٹس سے انسان باعزت نہیں بنے گا. امام کیا کہتے ہیں, وَاحْفَظْ لِسَانَكَ تُعَزْ, کہ جتنا اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو گے اتنا ہی زیادہ باعزت ہوتے چلے جاؤ گے. پھر امام کی حدیث کیا ہے, ان اردت عزا بلا عشیرہ فخرج من ذل المعصیہ. توجہ, امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم عزت دار ہونا چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو, فخرج من ذل المعصیہ, معصیت گناہ کی ذلتوں سے نکل آؤ, پروردگار تمہیں باعزت بناتا چلا جائے گا. جتنا احکامات پروردگار کو ادا کرتے چلے جاؤ گے, ہاں, جتنا کوئی پروردگار کے قریب ہوگا, امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وہ اتنا ہی کیا ہوگا, اتنا ہی عزت دار ہوگا. ان اردت عزا بلا عشیرہ, ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی خاندان ہے, کوئی قوم قبیلہ ہے, وہ بہت بڑا ہے, میرا خاندان یہ ہے, میرا باپ یہ ہے, میرا بھائی یہ ہے, ہاں, کہ بغیر عشیرہ کے تمہارے پاس کوئی نام و نسب نہیں ہے, تمہارا باپ کسی مقام و منصب کا مالک نہیں ہے, تمہارا خاندان کوئی بہت بڑا نہیں ہے. ان اردت بلا عشیرہ فخرج من ذل المعصیہ, یعنی جتنا زیادہ پروردگار کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی عزت دار ہوتے چلے جاؤ گے. جنگ جمل کا وہ واقعہ ہم سب کو یاد ہے, کئی مرتبہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں کہ جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے تمام فرزند امام علیہ السلام کے ساتھ تھے. امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو پہلے بلایا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد حنفیہ تم جاؤ اور جنگ کرو, لیکن محمد حنفیہ 1-2 مرتبہ گئے اور واپس آ گئے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے تلوار لی اور امام علیہ السلام نے خود جنگ کرنا شروع کیا. جب خود جنگ کی تو ظاہر ہے امام علی علیہ السلام کی جنگ کیسی ہوگی کہ روایت کیا کہتی ہے کہ خود عمار یاسر نے بیان کیا کہ صرف تلواروں کی جھنکار کی آواز آ رہی تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون کس پر تلوار چلا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹیڑھی ہو چکی ہے. امام علیہ السلام آئے, تلوار کو سیدھا کیا اور دوبارہ میدان جنگ میں چلے گئے. جب دوبارہ میدان جنگ میں گئے دوبارہ ویسی ہی جنگ کی, اور جب جنگ کر کے واپس آئے تو آ کر کیا کہا کہ عمار یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی دکھاوے کے لیے یہ جنگ کر رہا ہوں, واللہ ما اريد الا اللہ, علی اگر کچھ چاہتا ہے تو وہ سوائے رضا پروردگار کے کچھ بھی نہیں چاہتا. ان الصلاتی ان الصلاتی والنسکی ومحیای ومماتی لرب العالمین, میری نماز, میرا روزہ, میری زندگی, میری موت سب کی سب صرف پروردگار کے لیے. ان اردت بلا عشیرہ
फखरुज मिन जुल्लिल मासिया, अगर तुम चाहते हो कि इज्जतदार हो जाओ तो मासियत की गंदगी से, उस जिल्लत से बाहर निकल आओ। जितना रिज़ाए परवरदिगार, जितना खुशनूदी परवरदिगार को मद्देनजर रखोगे, परवरदिगार उतना ही बाइज्जत करता चला जाएगा। यही वजह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर लाशे के बाद एक जुमला अदा करते थे। क्या जुमला है? रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक जो चीज़ मलहूज़ खातिर है वो क्या है? रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। यही वजह है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार इब्न ज़ियाद में गई थी तो वहाँ पर बीबी ने भी यही कहा था कि मा रअयतु इल्ला जमीला, हमारे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहम है वो रिज़ाए परवरदिगार है। इंशाअल्लाह के परवरदिगार हम सबको खुशनुदी परवरदिगार अता करे, रिज़ाए परवरदिगार करे अता करे, हम सबको बाइज्जत बनाए। जो आज का दिन है वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। क्या कहना उस इमाम का जो 35 बरस जिंदा रहे, लेकिन उन 35 बरसों में इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते रहे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर गिरिया करना है तो इमाम सज्जाद जितना गिरिया करो कि इमाम अलैहिस्सलाम 35 बरस तक जिंदा रहे। 35 बरस तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गिरिया करते रहे। जब भी पानी आता इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते, जब भी खाना आता इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते, जब भी बाजार में जाते इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते, जब भी गोश्त के टुकड़ों पर इमाम सज्जाद की निगाह पड़ जाती इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते। एक मर्तबा क्या हुआ, आप सब ने बारहा इस रिवायत को सुना हुआ है कि इमाम अलैहिस्सलाम बाजार में आए, कसाब गोश्त के टुकड़ों पर कपड़ा डालना भूल गया। इमाम सज्जाद उसके करीब आए, गोश्त के टुकड़ों को देखते जाते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम गिरिया करते जाते हैं। एक मर्तबा कसाब से पूछते हैं, ए कसाब क्या तू ज़िबा के अहकाम से आशना है? अब कसाब ने जब इमाम अलैहिस्सलाम को देखा है तो एक मर्तबा ज़िबा के अहकाम को बताना शुरू किया। जी मौला, मैं इस्लाम के अहकामात से वाकिफ हूँ। जब भी मैं किसी जानवर को ज़िबा करता हूँ उसे दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करता, उसे पानी पिला लेता हूँ, छुरी को तेज कर लेता हूँ। अरे वो ज़िबा के अहकामात बताता जा रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम का गिरिया पड़ता जा रहा है। एक मर्तबा करबला की तरफ मुंह करके इमाम सज्जाद ने गिरिया किया, ओ मेरे मजलूम बाबा, ओ मेरे बेदफन बाबा, ओ मेरे बेकफन बाबा। हाय बाबा, जब आपको शहीद किया गया था शिमरे लई आपके सीने पर सवार था, आपकी जुल्फों को पकड़ा हुआ था। हाय बाबा, आप 3 दिन के प्यासे थे, 3 दिन के भूखे थे। हाय ये कसाब भी ज़िबा के अहकामात को जानता है, लेकिन मेरे बाबा को जब शहीद किया गया, अरे चंद कदम से सकीना इस मंजर को देख रही थी, और 72 कदम से ज़ैनब देख रही थी और कह रही थी, ऐ ज़मीन करबला जरा बुलंद हो जाओ, मैं अपने भाई की मकतल को देखना चाहती हूँ। और उधर हुसैन गरीब की आवाज आती थी, ऐ ज़मीन करबला जरा पस्त हो जाओ, मेरी बहनें मेरे मकतल को ना देखे। इमाम अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है मिनहाल, एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम के घर में आया, गुलाम से पूछता है कि बताओ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहाँ पर है? उसने बताया कि इमाम अलैहिस्सलाम बाग में गए हैं। मिनहाल क्या कहता है, कहा कि मैं बहुत खुश हुआ कि आज शायद इमाम अलैहिस्सलाम का मूड अच्छा है कि इमाम अलैहिस्सलाम बाग की सैर को गए हैं। कहा मिनहाल कहता है कि मैं इमाम के पीछे उसी बाग में गया, लेकिन मैंने क्या देखा, इमाम अलैहिस्सलाम पानी के किनारे बैठे हुए हैं और गिरिया करते जा रहे हैं। मिनहाल ने क्या कहा मौला आखिर कब तक गिरिया करेंगे? इमाम सज्जाद ने फरमाया, ए मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, एक दिन में जिसके 18 यूसुफ उससे जुदा हो गए हो, जिससे उसके 18 यूसुफ जुदा हो गए
इमाम ने अपने सर को पीट लिया, ए मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, अरे शहादत तो हमारा विरसा था, लेकिन क्या फूफियों माँ बहनों का बाजारों में बेरिदा जाना ये भी हमारा विरसा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने करबला के मसाइब को बयान करना शुरू किया। मिनहाल से क्या कहते हैं, ए मिनहाल हमारे ऊपर वो जुल्म हुए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कुछ जुल्मों को बयान किया। क्या कहते हैं कि जब हमें शाम के बाजार में ले जाया गया, अरे पत्थरों की बरसात हुई, ऐसे आलम में इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, देखिए कि हम भी किसी जगह चले जाए ना, किसी परदेश में चले जाएं, अगर किसी के हाथ में अकीक की अंगूठी होती है, अरे दिल कितना खुश होता है। अगर कोई सजदगाह पर नमाज पढ़ रहा हो, अरे समझ आ जाता है, अरे ये हमारे जैसा मोमिन है, अरे दिल खुश हो जाता है। लेकिन इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, अरे जब हम शाम में गए, अरे मैं दुआ कर रहा था, अरे कोई जानने वाला ना मिल जाए, कोई जानने वाला ना मिल जाए। ऐसे आलम में रसूल अल्लाह का एक सहाबी इब्ने उतैबा इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, इमाम अलैहिस्सलाम को पहचान गया। इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ऐ उतैबा तुम ही हो ना? कहा जी मौला मैं ही हूँ। कहा बताइए मौला इस बाजार में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहा इब्ने उतैबा अगर कुछ दिरहम और दीनार तेरे पास है तो जरा इस शिमरे लई को दे दे कि वो इन नेज़ों को लेकर आगे आगे चलता जाए, अरे उन सरों पर सबकी निगाह जाए, मेरी फूफियों के सरों पर किसी की निगाह न जाए। इमाम ने बयान किया, ऐसे आलम में किसी ने पत्थर मारा जो सरे हुसैन पर लगा, इब्ने उतैबा की चीख निकल गई। इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ऐ इब्ने उतैबा तूने तो एक पत्थर लगते हुए देखा, तेरी चीख निकल गई, तू इसे बर्दाश्त न कर सका। हाय हम करबला से कूफा, कूफा से शाम तक पत्थर और ताज़ियाने खाते आए। अजरकुम इंदल्लाह, अजरकुम इंदल्लाह। आज का दिन तो था ना, वो इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन था। इमाम अलैहिस्सलाम को करबला के मसाइब सुनने का कितना अरमान है। एक मर्तबा अपने बाकिर बेटे को करीब किया और करीब करके क्या कहते हैं, है बाकिर ये बता करबला में तेरी उम्र कितनी थी? इमाम बाकिर कहते हैं, ए बाबा जान मेरी उम्र सिर्फ 3 बरस की थी। कहा क्या तुम्हें करबला याद है? कहा जी बाबा मुझे याद है। कहा कि बताओ तुमने करबला में क्या देखा? आखिरी दिन है, जहर मिला हुआ है। इमाम अलैहिस्सलाम करबला के मसाइब को सुन रहे हैं। इमाम बाकिर ने बयान करना शुरू किया, ए बाबा मैंने देखा कि मेरे चचा अब्बास के बाजू कलम हुए, अकबर के सीने में बर्छी का नेज़ा लगा। ए बाबा मैंने देखा कासिम टुकड़ों में तकसीम हो गए। ए बाबा मैंने देखा कि दादा हुसैन को शिमरे लई ने 13 ज़रबों से कत्ल किया। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम करबला के मसाइब को बयान करते जा रहे हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सुनते जा रहे हैं। ऐसे आलम में इमाम सज्जाद ने क्या कहा, ए बाकिर बेटा मुझे मसनद से जमीन पर लिटा दो। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कहते हैं बाबा ऐसा क्यों है? इमाम अलैहिस्सलाम का मुंह मुड़ गया करबला की तरफ। ए बाकिर नहीं जानते, अरे जब मेरे बाबा को शहीद किया गया रेगे करबला, ओए मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। या अल्लाह या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद, या अली बिहक़्क़ अली, या फ़ातिर बिहक़्क़ फ़ातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़ हसन, या क़दीमुल एहसान बिहक़्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम। आज का जो दिन था ना, इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब को बड़ा याद किया था। इमाम सज्जाद क्या कहते थे, ऐ फूफी अम्मा जो हर मरहले पर मुझे बचाती रही, कभी शाम गरीबा में
कभी दरबार इब्न ज़ियाद में, कभी दरबार शाम में। ऐ पुप्पी अम्मा हर जगह पर मुझे बचाती रही। ऐ पुप्पी अम्मा देखिए आज सज्जाद को जहर मिल गया। परवरदिगारा तुझे मसाइब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वास्ता, परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कसीर करके मकबूल करना, तमाम मरहुमीन के दरजात को बुलंद करना, आला इल्लियीन में जगह अता करना, आइम्मा का कुर्ब व जवार अता करना, हौज़ कौसर से